So what are the steps? First step is the limit extends to 0. First step, if in the denominator there is not x is there, then you have to divide numerator and as well as denominator by x, and then we see the angle of that one. If here angle is 1 is angle 1 is there. If there is phi and phi, then we have to adjust phi is there. Okay. So this one, then after all we can say that here the value is equal to 1. The next thing is that the reciprocal of is also is 1. त्याचा reciprocal सुद्धा काय असतो 1 असतो. तर reciprocal म्हणजे काय? की लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x upon sin x जर घेतला तर व्हॅल्यू इज इक्वल टू किती 1. याच्यामध्ये सुद्धा तोच कंडिशन लिमिट एक्सटेंड टू 0 पाहिजे. आता इथे डिनॉमिनेटरला x इथे न्यूमरेटरला x angle of sin and x is the same one, that is equal to 1. Again, if you taken the reciprocal of that one, limit extends to 0, x upon tan x, that is equal to 1 is there. This is the important result. Reciprocal gets the same one, and we have to remember the 3 steps. What are the steps? First step is the limit extends to 0. Second step is that if in case of denominator there is not x is there, then we have to divide numerator and denominator by x or x square according to condition. The third thing is that we have to adjust the angle of that one. The angle of x and the denominator are the same one. Then and then the value is equal to 1 is there. Okay. So ये तीन चीजें देखने के बाद फिर अपन ने कल एक एग्जांपल लगाया था. Now we proceed to the next example of that one. उसके अगले एग्जांपल की तरफ जाएंगे. एग्जांपल कुछ इस प्रकार से see of the examples. So the first example is that. The example है इसमें limits of trigonometric functions. So first example is very clear here. Example is something like to be limit extends to 0. Limit extends to 0. अपन क्वेश्चन का मैं काम कंप्लीट है. पहला क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. Limit extends to 0. Sin n theta upon tan n theta. Sin n theta upon tan n theta is there. So पहले क्वेश्चन घेता होता त्याच टाइपचा सेम क्वेश्चन इज देयर. Angle is nothing but sin of n theta tan of n theta. It is tan and theta. So same things. First यहाँ पे angle theta tends to 0 पाहिजे. तर ते सगळे variables theta मध्ये theta tends to 0. So limit theta tends to 0, sin m theta upon tan n theta is there. So what happens now here? First one, theta tends to 0. पहिली condition satisfied. You have to remember how many conditions are there. You have to remember 3 conditions. In which first condition is applicable here? Theta tends to 0 is already is there. Theta tan n theta. काल तुम्हाला सांगितलं मी की रिझल्ट फक्त दोनच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साठी आहे. एक रिझल्ट आहे साइन साठी आणि एक रिझल्ट कशासाठी आहे tan साठी. है ना? लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin x by x is equal to 1 and limit extend to 0 tan x by x is equal to 1. बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साठी ती कंडिशन नाही. टेन्शन घ्या. मग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कडे आहे. पहिली लिमिट पॉसिबल आहे. Then afterwards sin m theta upon tan n theta. Here both are required in the angle. There is a theta is there. If it is x, then we will divide numerator and denominator by x is there. आता ये दोगुना ये दोनों को भी थीटा की आवश्यकता है. इसलिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये ना 3 स्टेप से जाएंगे. पहली स्टेप बराबर है lateral is equal to limit theta tends to 0 sin of n theta divided by tan of n theta. Okay. Now first condition is already there, theta tends to 0. Now the second condition is both required. दोनों को क्या की आवश्यकता है? थीटा टेंड्स टू 0 मतलब दोनों को हम कैसे डिवाइड करेंगे? थीटा से. फिर उसके बाद एंगल की क्या? एडजस्टमेंट. 3 स्टेप. पहली स्टेप है. दूसरी स्टेप पे आपसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड nr and dr numerator and denominator by theta is there. ऐसे करने से क्या होता है देखो अभी. If we divide numerator to this one, it is nothing but limit theta tends to 0 sin of m theta upon tan of n theta. Sorry, divide कर देंगे इसको अपन. Divided by theta. Then afterward tan of n theta divided by theta is there. This one. Okay. Second step is that
both required in the denominator theta is there. If there is x, then we will divide numerator and denominator by x is there. मगर यहाँ पे सब एंगल थीटा में इसके divide numerator and denominator by theta is there. Then आप दोनों की लिमिट सेपरेट करो. सेपरेट करने के बाद लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर की लिमिट सेपरेट डिवाइडेड बाय थीटा इज देयर, और उसके बाद डिनोमिनेटर की लिमिट सेपरेट. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan of n theta divided by theta is there. What happens now here? आप देखो theta tends to 0 की तरफ है. Okay, sin of m theta divided by theta. In the angle of sin m theta is there, only here theta is there. So we have to adjust this m into m की adjustment. So three steps are fulfilled here. एक तो थीटा 0 की तरफ जा रहा है, दूसरी कंडीशन डिनोमिनेटर में थीटा था, तीसरी कंडीशन एंगल दोनों का क्या होना सेम, इसकी वजह से ये m और n की एडजस्टमेंट. नाउ कम टू डिनोमिनेटर. थ्री कंडीशंस. पहली कंडीशन थीटा टेंड्स टू 0. ओके, देन द डिवीजन थीटा इज देयर, बट हियर एंगल tan ऑफ n theta is there, so we have to adjust here n into n is there. नाउ अब ये पूरा तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 into m, सॉरी 1 into m, और इसकी वैल्यू कितनी होगी पूरी 1. So 1 into n. So finally we got the answer m by n is there. So very simple. Only you have to remember how many steps are there. 3 steps are there. First one is as limit theta or x tends to 0, alpha tends to 0, beta tends to 0, कहीं भी जाने दो, वो जाना चाहिए 0 की तरफ. दूसरी कंडीशन, यहाँ पे अगर से थीटा है तो डिनोमिनेटर में थीटा चाहिए, x चाहिए तो डिनोमिनेटर में x, तो दोनों के भी डिनोमिनेटर में थीटा थीटा नहीं है, तो पहला काम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को थीटा से डिवाइड करें, थीटा का ब्रैकेट. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इनके एंगल सेम करने का. एंगल में m है मगर यहाँ एंगल में सिर्फ थीटा है, you have to adjust m and m is there, you have to adjust n and m is there, then afterward you apply the result, it is equal to 1. So very simple questions are there, very simple questions. तो यहाँ से सही स्टार्ट लिमिट लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत अच्छे से बता रहा. बेसिक इसमें 8 दिन चलेगा अपनी, मगर बेसिक से देखना जरूरी है. ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. जेई के लिए लगने वाला है सब, इसलिए इतना डिटेल में देखना है इसको. देखो तो नेक्स्ट वन इधर नेक्स्ट है, इसमें सबको ये मालूम है व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस वन. सबको पहले फार्मूला याद होना. सबसे पहले sin 2 थीटा का फार्मूला सबको याद होना चाहिए. sin 2 थीटा के कितने फार्मूले हैं? 2 फार्मूले. एक फार्मूला बोलो 2 sin थीटा cos थीटा, एक फार्मूला बोलो इन टर्म्स ऑफ tan इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये तो tan क्या हो गया, tan में ये लग गया cos कर दिया पर. व्हाट इज द फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ये होगा sin 2 थीटा के 2 फार्मूले. ठीक है, तो थोड़ा और अपन लिखेंगे. ठीक है, थोड़ा सादा बना दे सकता है. ओके, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा एंड 2 tan थीटा. ये दो फार्मूले sin के, ये फार्मूला याद होगा. cos 2 थीटा के 2 फार्मूले, एक फार्मूला cos और sin में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला sin में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला tan में इट इज नथिंग बट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये दो डबल एंगल का यूज नंबर ऑफ टाइम्स है, इसलिए फार्मूला याद होना जरूरी है. sin 2 थीटा के 2 फार्मूले, एक फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा और एक फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज देयर. ओके, cos 2 थीटा को याद रखने के लिए 4 मेथड है, मतलब 4 फार्मूले कैसे याद रखेंगे. पहला फार्मूला cos sin में, एक फार्मूला cos में, एक फार्मूला प्योरली sin में, और चौथा फार्मूला प्योरली tan में. So it is a method of remembering the formula. One formula is in terms of cos and sin is there, one formula is only cos is there, one formula is only sin is there. फिर यहाँ पे कंफ्यूज होता. sin में हमेशा याद रखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, और cos पे 2 को पहले cos में पहले cos है तो sin में बाद में sin है ना, बोले से कंफ्यूज होता. यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये याद रखो cos में पहले cos है, sin में बाद में sin है. tan का फार्मूला, तो इसकी आवश्यकता इसलिए
यहाँ पे तुमको लगने वाला है। उसके बाद और एक दो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले क्या है यहाँ पे लिखेंगे, अपन एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे किसी लिखने की आवश्यकता नहीं। ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, एकदम याद रखना, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। और उसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज देयर। ये आर द फॉर्मूलास, ये अपन ने देखे वाला है ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे, तो अपन प्रूफ भी करने वाला है। 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, प्रूफ करके देखने वाला है। 11 की पुस्तक 11 की अपने नोटबुक देखो। और किसी को अगर से डिराइव करने का है तो ये फॉर्मूले डिराइव फ्रॉम दी डबल एंगल फार्मूला। देखो अभी ये फार्मूला अगर निकालने का है तुम लोग ये बोलो cos 2 थीटा का साइन वाला फार्मूला 1 माइनस थीटा माइनस का प्लस इधर आया तो 1 माइनस cos 2 स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुम्हारा 1 माइनस निकालेंगे क्या 1 minus cos theta is there, तो आया 1 minus cos 2 theta। तो 1 minus cos theta निकालने के लिए एंगल डिवाइडेड बाय 2, एंगल डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आ गया थीटा। यहाँ पे भी एंगल डिवाइड बाय 2 करो तो फॉर्मूला क्या आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इट इज द फार्मूला कम्स फ्रॉम द डबल एंगल फार्मूला। So 1 minus cos theta is nothing but 2 sin square theta by 2. This formula is actually come from the double angle formula. ठीक है, उसी प्रकार से 1 plus cos theta निकाल सकते हैं अपन। देखो अभी कैसा। So tell me, what is the formula for cos का double angle formula का cos वाला formula 2 cos square theta minus, इसको लेके जाओ minus 1, तो ये हो गया 1 plus cos 2 theta और यहाँ पे क्या बचा 2 cos square theta। अपने को निकालने का है 1 plus cos theta, तो एंगल को डिवाइड बाय 2 करो, यहाँ पे भी एंगल डिवाइड बाय 2, यहाँ पे भी एंगल डिवाइड बाय 2, तो फार्मूला क्या मिलेगा 1 plus 2 से 2 कैंसिल, फिर थीटा रहा और यहाँ पे फार्मूला क्या आ गया 2 cos square theta by 2। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, 1 plus cos theta का फार्मूला 2 cos square theta by 2 और 1 minus cos theta का फार्मूला 2 sin square theta by 2। these formulas are very important। sin के डबल एंगल के दो फार्मूले, cos के डबल एंगल के चार फार्मूले और 1 minus cos theta का फार्मूला और 1 plus cos theta का फार्मूला, ये दोनों फार्मूले एक्चुअल कहां से डिराइव करे अपन ने डबल एंगल। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अब ये इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से नंबर ऑफ फार्मूलेस तुम डिराइव कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर से 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 है, तो कोई इसका बताओ 1 minus cos 2 theta कितना रहेगा। तो सिर्फ क्या करें अपन यहाँ पे एंगल मल्टीप्लाई बाय 2, इसको एंगल से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना मिलेगा 2 sin स्क्वायर, इसको एंगल मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2 थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया तुम्हारा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ऐसे नंबर ऑफ फार्मूले इस पे अपन डिराइव कर सकते हैं। इससे पूछा तुम्हारे को 1 plus cos 4 थीटा कितना, अगर से अपने को 1 plus cos थीटा का फार्मूला मालूम है तो उसमें से अपन 1 plus cos 4 थीटा निकाल सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई एंगल बाय 4 दोनों साइड से, तो 1 plus cos 4 थीटा इज इक्वल टू एंगल, एंगल ये दो आइडेंटिटीज और यहाँ पे क्या cos स्क्वायर एंगल में कितना है थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 4 थीटा बाय 2, तो ये कितना मिला तुम्हारा 2 cos स्क्वायर ओनली 2 थीटा। दैट इज द फार्मूला फॉर 1 plus cos 4 थीटा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फार्मूले, ये फार्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये फार्मूले से अपन नंबर ऑफ फार्मूलेस क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओनली, है ना। 1 minus cos 2 थीटा निकाल सकते हैं, 1 minus cos 4 थीटा, cos 6 थीटा, cos 8 थीटा, 3 थीटा भी निकाल सकते हैं। सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंगल को 3 से। 1 minus cos 3 थीटा को पूछ लिया तो क्या करेंगे फार्मूला 2 sin स्क्वायर एंगल मल्टीप्लाई बाय 3 मुझे 3 थीटा बाय 2 इज देयर। तो इसमें नंबर ऑफ फार्मूलेस अपन डिराइव कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 minus cos 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इज देयर। इसको सॉल्व करने का है, एकदम सिंपल, सिर्फ फार्मूला याद होना बस, फार्मूला ही मांगता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगता है, केस जो है फार्मूला का बस 1 minus cos 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इज देयर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल बोलो। सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे अपन, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अभी बताया मैंने,
1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो अच्छे से लिख रहे हैं यहाँ पे अपन बड़े से 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। एंगल में डबल एंगल है, अपने को फार्मूला क्या मालूम है, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला मालूम है, मतलब 1 माइनस कॉस का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए एंगल मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2 थीटा बाय 2 डिवाइड बाय कितना 3 थीटा स्क्वायर, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो सिर्फ कितना रह गया बोलो, हमारे पास रहेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, बस आंसर आ गया। अब आंसर में क्या है देखो, अपन तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले ये थीटा टेंड्स टू 0 है और ये कांस्टेंट है 2, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होने के बाद दो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को अपन क्या करेंगे लिमिट के बाहर है, अभी बताया ना अपन अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या बताया, जब भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ आएगा तो कांस्टेंट क्या होगा लिमिट के बाहर। अब देखो लिमिट में कैसा आइडिया करा उसको, sin स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इसी को ये अगर से ऐसा दिख रहा होगा तो देखो थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा और ब्रैकेट का स्क्वायर, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा एंड देन ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट है। देखो ना sin स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर, इसके लिए क्या अपन ने देखो आपको तो आपको रिजल्ट मिलता तीन चीजें, थीटा 0 की तरफ जा रहा है ओके फर्स्ट थिंग, second thing denominator में theta है okay, and third thing is that the angle of sine and this one are the same one, so finally we got the answer something like to be here 2 और ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो आंसर कितना आ गया that is equal to 2 is there, है ना, ये तो 1 हो गया ना पूरा, ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 is there, तो 2 into 1 that is equal to 2 is very simple, only it requires 3 formulas, ये फार्मूले याद होना जरूरी है, ये अपन 11 से देख रहे हैं, sin 2 थीटा के 2 फार्मूले, cos 2 थीटा के 4 फार्मूले और ये फार्मूला, ये दो फार्मूले 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फार्मूले अगर से किसी को याद है तो उसका पेपर सेकंड में आधे से ज्यादा पोर्शन खत्म हो गया ऐसा समझ लेगा, तो सिर्फ फार्मूले का खेल है, आगे पूरा ब्यूरेट में ये फार्मूला लगने वाले हैं, इंटीग्रेशन में तो नंबर ऑफ टाइम्स ये फार्मूले का यूज है, और तो पेपर सेकंड में सबसे ज्यादा पोर्शन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का है, बाकी कुछ चैप्टर तो प्रोबेबिलिटी है तो सिंपल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए फार्मूले याद करना बहुत जरूरी है। ये फार्मूले सबके 11 में सब प्रूफ करके बताए वाले हैं, फिर भी अपने पास फार्मूले का चार्ट भी दिया वाला है, तो चार्ट के हिसाब से ज्यादा पूरे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट डबल एंगल फार्मूला 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा ट्रिपल एंगल फार्मूले सब है ना, एकदम व्यवस्थित करायचं आपल्याला, फार्मूले पार्ट केल्याशिवाय पार्ट तुम्हाला सॉल्व करता येणार नाही, केल्याशिवाय केस ओके। चला मग पुढे जाऊ आपण, now we proceed to the next one, next part of that one Sir, okay sir, we proceed to the next part, so what is the next part here, so we start the next part here, so next part is very simple here, question is something like to be here, limit x tend to pi by 6 is there, what is the question here, limit x tends to pi by 6, limit x tend to pi by 6, 2 minus cosec x, 2 minus cosec x upon cot square x minus 3 is there, cot square x minus 3 is there, so very simple one, उसके बाद अपने को सबसे इम्पोर्टेंट है we must know the relation between them, relation सबको मालूम है, what is the relation, three identities, fundamental identities, second part है, पहला फार्मूला sin square theta plus cos square theta is equal to 1, then afterward sec square theta plus 1 is equal to tan square theta, then cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta, these are the three fundamental identities, so by using that one देखो ऊपर cosec है नीचे cot square x है, can we write cot square x as अपन क्या लिख सकते हैं, cot square x को बोलो cot square x का लिखते हैं अपन cot square theta is equal to cosec square theta minus 1, ये रिलेशन देखो इसमें, तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, L is equal to limit x tends to pi by 6, so here now first we solve them,
2 cosec x minus 1 upon cot square x minus 1 क्या है cot square x this cot square can be written in terms of cosec लिखते हैं आपका क्या फार्मूला cosec square x minus 1 याद है थोड़ी cosec square x minus 1 इसके प्लेस पे और ये -3 एंटिटीज थोड़ा बड़ा लिखेंगे थोड़ा वीडियो के टाइम पे थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है दिस अब ये हो गया तुम्हारा फार्मूला लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 6 ये भी दिमाग में चलना चाहिए अब क्या होगा अगली स्टेप सर 2 माइनस cosec x सर हाईएस्ट सर वो आइडेंटिटी रॉन्ग हो गई। उसी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो आपको जरूरत भी नहीं थी फिर भी चलो ओके जब अपन कभी रखेंगे तो उसको समझ में आता आपने की प्रॉब्लम में क्या है उनके ठीक है इसके हिसाब से ओके अब बोलो ये कितना मिल रहा है तुम्हारे को फिर cosec स्क्वायर x -1 -3 -4 इससे अब थोड़ा दिमाग लगाने का ना ऊपर है 2 cosec x और नीचे cosec स्क्वायर x -4 ये थोड़ा दिमाग में आने पर 4 कैन बी रिटन एज 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर है ना 2 का स्क्वायर मतलब फार्मूला हो गया ये बार-बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नंबर ऑफ टाइम्स या प्रकार से क्वेश्चन ये तो cosec स्क्वायर x -4 तो ये तो दिमाग में आएगा जानिए ये होगा 2 का स्क्वायर मतलब फार्मूला होगा a स्क्वायर - b स्क्वायर एक ब्रैकेट में a - b एक ब्रैकेट में a + b और ऊपर क्या है 2 cosec x तो यहां से क्या करेंगे अपन माइनस कॉमन निकाल के ये क्या कर सकते हैं अपन cosec x -2 तो ऊपर का है cosec x -2 और नीचे का है cosec x -2 गेट्स कैंसिल जब भी कॉमन टर्म कैंसिल होगा वी अप्लाई द लिमिट एंड गॉट द आंसर फॉर दैट वन ये नंबर ऑफ टाइम्स आने वाला है यहां पे तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए ये कितना हो गया तुम्हारा ये 4 हो गया और ऊपर 2 cosec x है क्या बताया मैंने इसके लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 6 बोलो क्या करूं यहां पे अभी तो आपको दिमाग में आने वाला नहीं है अभी ये स्टेप है इट इज इसको मैंने क्या बताया cosec स्क्वायर x और ये 4 को क्या लिख सकते तुम -2 का स्क्वायर इज देयर नाउ अब ये फार्मूले की जरूरत नहीं नो नीड ऑफ दैट फार्मूलेस अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन पूरे फार्मूले अपन प्रूफ करके बताए वाले हैं अपने 11th रजिस्टर में देखो जरा आप देखो ये स्टेप क्या होगी तुम्हारी लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 6 नो टेल मी व्हाटएवर उसका पहले डिनोमिनेटर की तरफ जाओ ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर - b स्क्वायर राइट है दिस इज नथिंग बट इट इज योर a स्क्वायर - b स्क्वायर टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर a स्क्वायर - b स्क्वायर तो ये हो गया a - b और ये हो गया a + b इज देयर ओके a - b a + b और ऊपर फार्मूला क्या है 2 cosec x और नीचे क्या आ रहा है cosec x -2 इज देयर इसको हम इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर को क्या करेंगे सिर्फ यू टेकन माइनस कॉमन सिंपली माइनस अगर से कॉमन निकाला मैंने तो क्या मिलेगा cosec x -2 कोई फर्क पड़ा क्या नहीं देखो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन cosec x there and minus become +2 is there मतलब वही फार्मूला 2 cosec x there तो ये इसके हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट माइनस कॉमन इससे निकाले तो माइनस कॉमन निकालने के बाद कॉमन टर्म गेट्स कैंसिल नाउ अप्लाई द लिमिट हियर तो ऊपर क्या बचा -1 नीचे x कहां पे जा रहा पाई बाय 6 की तरफ तो ये कितना मिला अपने को cosec x के जगह पाई बाय 6 +2 इज देयर तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec पाई बाय 6 sin पाई बाय 6 1/2 cosec pi by 2 or cosec pi by 6 2 so it is nothing but -1/4 is there so very simple and very interesting question is there so now we proceed to the next one I hope you got that one सबसे समझ में आया होगा एकदम सिंपल है ना जिसको फार्मूलेज और जिसको आइडेंटिटीज याद है उसके लिए बहुत सिंपल है राइट है ये लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें सबसे ज्यादा ये तो सादा एग्जांपल था मगर सबसे ज्यादा यूज क्या होता लिमिट एक्सटेंड टू 0 sin x by x is equal to 1 लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan x by x is equal to 1 नंबर ऑफ टाइम्स उसका यूज ज्यादा है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन इसमें चलो ये टाइप का क्वेश्चन देखेंगे स्क्वायर रूट वाला हर एक टाइप के क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है और अपन इसको कैसे लिख सकते हैं ओके ईच एंड एवरी टाइप यू कवर हियर so now we proceed to the next example कुछ इस प्रकार से
उसके बाद आगे बचा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इसमें इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन खत्म, सब्स्टिट्यूशन जिसको आ गया उसका लिमिट खत्म। तो देखो लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंड टू पाई अंडर रूट ऑफ 1 minus cos x minus root 2 divided by sin square x is there, divided by sin square x is there. So very simple question आज के। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट वाला आया तो पहले इसके अपन डायरेक्ट मेथड से चेक करेंगे। चलो पहले डायरेक्ट लिमिट रखो, x टेंड्स टू पाई है तो कितना मिला देखो, आफ्टर टेकिंग द डायरेक्ट लिमिट हियर व्हाट वी गॉट हियर, सी हियर नाउ डायरेक्ट लिमिट रखने के बाद ये कितना मिला 1 माइनस cos पाई, किसी को cos पाई की वैल्यू मालूम नहीं है तो cos पाई की वैल्यू रहती है -1। तो ये देखो ये कितना मिला 1 माइनस cos पाई मतलब -1, तो माइनस माइनस बिकम +1, तो एक्चुअली कितना हो गया 1 + 1 मतलब √2 में से √2 गया 0 अपॉन sin पाई की वैल्यू किसी को मालूम है तो sin पाई मतलब कितना, sin 0 0, sin पाई 0, sin स्क्वायर पाई 0, तो ये फॉर्म में कौन से फॉर्मेट में आएगा 0/0। समझा क्या बता रहा है यहाँ पे, सबसे पहले रूट में आ गया तो थोड़ा डाउटफुल है, रूट में आया तो हम सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट देखेंगे कि कहीं इसको अपन रैशनलाइजेशन से तो नहीं कर सकते, तो रैशनलाइजेशन से करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या, डायरेक्ट लिमिट रखने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 0/0। यदि आंसर 0/0 आता है तो देन वी यूज द रैशनलाइजेशन मेथड, है ना। ऐसा अपने को कोई आप तो नहीं करेंगे, मतलब कोई सपना तो नहीं पड़ेगा कि कौन सी मेथड से यूज करने का है, तो अपन देखेंगे रूट में टर्म आया तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि अपन पहले डायरेक्ट लिमिट रखो, आंसर क्या है 0/0, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड। कैसे यूज करें अपन डायरेक्ट लिमिट, x के प्लेस पे पाई रखने के बाद cos पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस बिकम +1, सो 1 + 1 √2 इज देयर, √2 में से √2 गया 0 डिवाइड बाय। अच्छा अब ये समझ में आ गया कि ये है तुम्हारा रैशनलाइजेशन मेथड इज देयर, तो अब इसको आराम से सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, बोलो क्या है रैशनलाइजेशन मेथड, वेरी सिंपल वन, इट इज नथिंग बट √1 minus cos x minus √2 अपॉन sin स्क्वायर x, किसी को याद है तो कर ही लिया अपन ने रैशनलाइजेशन मेथड, इनटू जो पार्ट रूट में है उसके रैशनलाइजेशन के लिए अपन 1 minus cos x, if it is minus we have taken plus √2 divided by same thing in the denominator plus √2 is there, this is finished, okay इतना हो गया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा लेने के बाद क्या मिलेगा देखो जरा, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, ये हो गया √1 minus cos x, √1 minus रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 minus cos x इज देयर, माइनस प्लस माइनस √2 ओनली 2 इज देयर, नीचे आ जाओ। अभी रिजल्ट साइन कॉस में sin स्क्वायर x को किसी को अगर से समझ रहा हूं तो sin स्क्वायर x का आइडेंटिटी 1 minus cos स्क्वायर x है, राइट है, sin स्क्वायर x इज 1 minus cos स्क्वायर x है, और ये टर्म है इट इज 1 minus cos x plus √2, ये टर्म एज इट इज। अब देखो जरा क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसा रखने के बाद अब किसी के समझ आ गया तो उसके दिमाग में स्टेप्स होना चाहिए, कैसे स्टेप चलेंगे देखो जरा, आप ऊपर आ जाओ, ये सबसे पहले बोलो ये कितना मिला 1 minus 2 मतलब कितना -1 इज देयर, राइट है, 1 minus 2 मतलब कितना मिला -1, ठीक है, एक स्टेप और लिखता है फिर तुम और बोलो। उसके बाद ये स्टेप चलना चाहिए दिमाग में, 1 minus cos स्क्वायर x है तो किसी को 1 मतलब 1 नहीं है, 1 मतलब क्या है 1 का स्क्वायर है, राइट है, कैन राइट एज 1 स्क्वायर minus cos स्क्वायर x, ऐसे लिखने से ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर minus b स्क्वायर का, right? Why we have to write this one as a 1 square, because we have to convert in the formula a square minus b square को फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला लेंगे 1 minus cos x 1 plus cos x, a minus b a plus b, और ऊपर अगर से देखेंगे तो minus cos x
1 में से -2 गया तो -1, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालने के बाद एक टर्म ऊपर से कैंसिल होगी और एक टर्म नीचे से कैंसिल होगी। एक बार कॉमन टर्म कैंसिल हो गया तो अप्लाई द लिमिट एंड गॉट द आंसर फॉर दैट वन। वेरी सिंपल वन। सो वी प्रोसीड टू दिस वन। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो लिमिट एक्सटेंड टू पाई, ये अरिथमेटिक स्टेप तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तो ये कितना मिला तुमको माइनस cos x माइनस 1 इज देयर, एक में से 2 गया -1 कभी माइनस cos x एज इट इज। उसके बाद ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो कैन वी राइट दिस वन एज a माइनस b एंड a प्लस b इज देयर एंड दिस टर्म रिमेन एज इट इज 1 माइनस cos x प्लस √2 इज सबकी डिवीजन। चलो फिर खत्म। अब क्या करो, माइनस cos x -1 आने के बाद इसमें से माइनस क्या निकालेंगे अपन, कॉमन। माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या मिलेगा, 1 प्लस cos x इज देयर। तो 1 प्लस cos x ऊपर से, 1 प्लस cos x नीचे से कैंसिल। अप्लाई द लिमिट एंड गॉट द आंसर फॉर दैट वन। तो देखो यहाँ पर करेंगे इसको अपन क्वेश्चन की जगह पे। तो क्वेश्चन में करने के बाद वेरी सिंपल पोजीशन, तो क्या करेंगे बोलो, क्या होता है यहाँ पे, न्यूमरेटर में से -1 कॉमन लो। -1 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बचे, माइनस कॉमन लो सिर्फ, तो ये बचा 1। माइनस का cos x है तो कॉमन लिया इसलिए यहाँ आ जाएगा प्लस का cos x, राइट। -1 माइनस प्लस माइनस cos x इज देयर, और नीचे क्या बच गया, 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x इज देयर, और ये टर्म रूट में बच गया, अंडर रूट में 1 माइनस cos x प्लस √2 इज देयर, दिस वन। चलो खेल खत्म। ये कॉमन टर्म दोनों कैंसिल, if common term gets cancelled then apply the limit and got the answer। यही निकालेंगे अपन, ये यहाँ पे आ जाएगा अपना। ऊपर क्या बचा बोलो, ये पूरा कट गया, ऊपर क्या बचा, माइनस साइन और 1, सो -1 अपॉन, नीचे देखो 1 माइनस cos x के प्लेस पे पाई, तो ये बताया मैंने कैसे अप्लाई करेंगे। 1 माइनस cos x के प्लेस पे पाई मतलब cos पाई की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस बिकम +1, तो ये एक्चुअली कितना हो गया 2, राइट। ये पहले से 1 था, इसकी वैल्यू -1 थी, तो माइनस माइनस +1 हो गया, एक और एक 2 हो गया। अब इसमें अप्लाई करो वही अपना, cos पाई -1, so this minus minus become +1, so ये हो गया अंडर रूट में 2, √2 प्लस √2, इट इज नथिंग बट 2√2, है ना, बहुत दिन के बाद आया 2√2। so 2√2 means फाइनल आंसर विल बी द -1 अपॉन 4√2 इज देयर। तो इसमें दोनों मेथड कवर हुए, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी और अपना रैशनलाइजेशन मेथड भी। सो ऐसा है, एक वन बाय वन करेंगे अपन, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल पे वैसे जाएंगे अपन। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक बार लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें से, क्वेश्चन को किस प्रकार से थोड़ा आइडेंटिटी का देख रहे थे इसमें। ओके चलो ठीक है। So we proceed to the next question. Limit extends to 0. देखो अभी कैसे करेंगे क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. Sin of limit extends to 0, 1 minus cos nx upon 1 minus cos mx, 1 minus cos nx upon 1 minus cos mx is there. This is the question. 1 minus cos nx upon 1 minus cos mx is there. This is the question and you have to solve this one. So very simple one. अब इसके लिए फार्मूले की जरूरत है। देखो फार्मूला में इसका पूरी जान फार्मूला है, पेपर 2 it is the only formula. Tell me what is the formula for 1 minus cos x? अभी बताया 1 minus cos is nothing but 2 sin square x by 2. अब मेरे को बोलो यहाँ पे एंगल पे कितना है, cos nx है, तो फार्मूला क्या मिल गया,
1 minus cos nx is nothing but 2 sin square nx by 2, राइट? ओनली एंगल मल्टीप्लाई बाय n, तो ये nx by 2 हो गया। चलो अगला फार्मूला 1 minus cos mx का फार्मूला बोलो। 1 minus cos mx का फार्मूला 2 cos स्क्वायर सॉरी 2 sin स्क्वायर, एंगल में सिर्फ कितना है mx by 2 यूज है। बस खत्म। क्या इसमें नया क्या था? 1 minus cos x का फार्मूला अगर से मालूम है तो एंगल मल्टीप्लाई बाय n, तो सिर्फ एंगल मल्टीप्लाई 1 minus cos mx का फार्मूला एंगल मल्टीप्लाई बाय ef यूज है। बस दोनों फार्मूले रखो उसमें, तो यू गॉट हियर। यहां से स्टार्ट l is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x पूरा फार्मूला 2 sin स्क्वायर nx by 2 divided by 2 sin square mx by 2, बस।